Okay, now here is a new lecture on the pacemaking. Now, pacemaking is mainly done by the SA node, as we know that this SA node is called as a pacemaker of the heart, and it is this SA node which generates impulse, which generates the electric signal. That electric signal generation by the SA node is called as the pacemaking. And now we will move forward and we will just study about how this SA node makes that electrical signal. Now, as we know, the SA node is called as the pacemaker of the heart. It is called as the pacemaker of the heart, and for this pacemaking, firstly, I will just here tell you about some terms. The first term which I am writing here will be membrane potential. Membrane potential. What is membrane potential? Pacemaking पढ़ने के लिए पहले कुछ टर्म्स होती हैं, ये टर्म्स पहले समझनी होती है, फिर हम पेस मेकिंग पढ़ेंगे कैसे ऐसे नोट करता है. Membrane potential. What is membrane potential? Membrane potential simply is, membrane potential जो है, it simply means difference. ये difference होती है ions की, difference of ions inside or outside of cell. Difference of ions inside or outside of cell. या तो इन सेल के इनसाइड या आउटसाइड जो डिफरेंस होती है आयन्स की, दैट इज कॉल्ड एज मेम्ब्रेन पोटेंशियल. डिफरेंस ऑफ आयन्स इनसाइड और आउटसाइड ऑफ सेल. This is called as membrane potential. For example, here is a cell. This is the cell membrane, and it is nucleus of the cell. Cytoplasm is there. There are organelles. Okay, I'm just drawing it roughly. These are the organ. This is endoplasmic reticulum. Here is Golgi apparatus. Simply. Okay, now this is the cell membrane. Inside the cell means cell के अंदर, and outside the cell means cell के बाहर, plasma membrane के बाहर. जो ions होते हैं, that means the charged particles. For example, sodium. For example, this is the sodium ions outside of the cell, and potassium ions are inside the cell. For example, there are more potassium ions inside cell, and there are less sodium ions inside cell. While as on the outer side there are more sodium ions on the outer side of the cell, while as there are less potassium ions outside the cell. And this makes this difference between the ions inside and outside of the cell, this forms a potential across the membrane. That's called as the membrane potential. ये कुछ चार्ज से डेवलप हो जाता है, डिफरेंस से, इस आयन डिफरेंस से कुछ चार्ज से डेवलप हो जाता है. दैट्स कॉल्ड एज द मेम्ब्रेन पोटेंशियल. मेम्ब्रेन पर जो डिफरेंस आ जाती है बिटवीन द आयन्स आउटसाइड एंड इनसाइड ऑफ द सेल, देयर ऑकर्स अ डिफरेंस. दैट डिफरेंस मींस कंसंट्रेशन सी वो ग्रेडियंट सा क्रिएट हो जाता है, तो दैट बिकम्स द मेम्ब्रेन पोटेंशियल. उसको हम मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहते हैं. सिंपली डिफरेंस ऑफ द आयन्स इनसाइड और आउटसाइड ऑफ द सेल, दैट मींस आयन्स आर द चार्ज्ड पार्टिकल्स, एंड दिस मेम्ब्रेन पोटेंशियल, इट सिंपली मींस द charge. Membrane potential, it simply means the charge which is developed by the difference of ions inside or outside of the cell, that is called as the membrane potential. It is simple. Now membrane potential के बाद दूसरी एक term है, that is called as action potential. Action potential. What is action potential? Now action means an activity. Action potential, I'm just writing it short. Now what action potential means? Action potential simply means it is a change
change in membrane potential. If the membrane potential, if for example membrane is having a certain type of a charge, membrane is having a certain type of charge, for example there are ion differences, those ion differences make a certain type of a charge on the plasma membrane, and if there is change in the charge and if there is change in the membrane potential, that means the charge on the membrane, if there is change in the membrane potential, the change in the membrane potential is called as the action potential. And this action potential is simply in the form of this, like on graphs you see the action potential as this, visualize it as this. It is simply it becomes just like as a current is flowing. Okay. so simply this action potential, it simply means a change in the membrane potential. Now there is another term called as resting potential. ये resting potential क्या होता है? Resting potential. Resting potential, as the word implies that resting potential means inactive, cool and calm. Resting potential means अगर यहाँ पर एक सेल है, इसकी मेम्ब्रेन पर कोई चार्ज है, that means it is having a membrane potential because there is a difference in the ions. For example sodium और पोटेशियम आयन्स के आसपास पोटेशियम आयन्स के बीच कोई डिफरेंस है, वो डिफरेंस एक चार्ज सा क्रिएट करती है मेम्ब्रेन पर, दैट इज कॉल्ड एज अ मेम्ब्रेन पोटेंशियल. और अगर ये मेम्ब्रेन पोटेंशियल, इफ दैट मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंजेस, अगर ये मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज हो रहा है, इफ मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंजेस, दैट इज कॉल्ड द एक्शन पोटेंशियल. फॉर एग्जांपल अगर ये मेम्ब्रेन पोटेंशियल, यहाँ पर मैं एग्जांपल लूंगा, मेम्ब्रेन पोटेंशियल है इस मेम्ब्रेन, इस सेल की मेम्ब्रेन का -70 मिलीवोल्ट्स इसका मेम्ब्रेन पोटेंशियल है. मोस्टली जो भी अगर मैं नर्व सेल्स की बात करूं तो उनमें मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो होता है, या उसको हम रेस्टिंग पोटेंशियल या हम कभी बोलते हैं, तो वो -70 मिलीवोल्ट्स का होता है. तो दिस अगर ये फॉर एग्जांपल अगर ये मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, अगर ये मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज नहीं हो रहा है, तो अब मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या, ये तो चेंज नहीं हो रहा है, दैट मीन्स इट ऑलवेज रिमेन्स -70 मिलीवोल्ट्स. और जो ये इक्विलिब्रियम क्रिएट हो रहा है बिटवीन द आयन्स, दिस इक्विलिब्रियम विच इज क्रिएटेड बिटवीन द आयन्स, वो कैसे क्रिएट होता है? उसमें बाइकार्बोनेट आयन्स भी रोल प्ले करते हैं और उसमें क्लोराइड आयन्स भी रोल प्ले करते हैं, जिससे ये इक्विलिब्रियम क्रिएट हो जाता है. और जब ये इक्विलिब्रियम क्रिएट हो जाता है, तो अगर ये कांस्टेंट, अगर ये मेम्ब्रेन पोटेंशियल अब जब कांस्टेंट रहता है, तो उसको हम रेस्टिंग पोटेंशियल कहते हैं. तो सिंपली मीन्स रेस्टिंग पोटेंशियल मीन्स एन इक्विलिब्रियम स्टेट. इट इज सिंपली एन इक्विलिब्रियम स्टेट या कांस्टेंट मेम्ब्रेन पोटेंशियल. हम सिंपली इसको डिफाइन करेंगे एज कांस्टेंट मेम्ब्रेन पोटेंशियल. कांस्टेंट मेम्ब्रेन पोटेंशियल, अगर कांस्टेंट मेम्ब्रेन पोटेंशियल रह रहा है, दैट इज कॉल्ड एज द रेस्टिंग पोटेंशियल. अब रेस्टिंग पोटेंशियल अगर मैं बात करूं एसए नोड की, एसए नोड वो स्पेशलाइज्ड कार्डिक सेल है, ये ग्रुप ऑफ कार्डिक सेल्स है, स्पेशलाइज्ड मॉडिफाइड सेल्स हैं ये. तो इन एसए नोड में रेस्टिंग पोटेंशियल सेल्स में नहीं होता है. दैट मीन्स एसए नोड आर, सिंपली मैं कहूंगा इसमें कौन सी सेल्स होती है? पेसमेकर सेल्स. पेसमेकर सेल्स, उनको हम पेसमेकर सेल्स बोलते हैं, pacemaker cells. SA node is having a special kind of cells in it which are modified cardiac cells, तो called as the pacemaker cells. और ये pacemaker cells जो है फ्रॉम जैसे कि जनरली हर किसी सेल में जो नॉर्मल कार्डियोमायोसाइट्स हैं उनमें रेस्टिंग पोटेंशियल होता है. जैसे कि वेंट्रिकुलर सेल्स है, वेंट्रिकल में जो भी सेल्स पाई जाती हैं या आर्कल्स में जो सेल्स पाई जाती हैं उनमें रेस्टिंग पोटेंशियल होता है. बट ओनली ऐसे नोड जो है, ऐसे नोड की पेसमेकर सेल्स जो है, ऐसे नोड में जो पेसमेकर सेल्स हैं उनमें रेस्टिंग पोटेंशियल नहीं होता है. दैट मीन्स दे आर नॉट हैविंग ए कांस्टेंट मेम्ब्रेन पोटेंशियल, उनमें कांस्टेंट मेम्ब्रेन पोटेंशियल नहीं होता है. while as all other cells in our body they are having a constant membrane potential called as the resting potential. Example is of the neurons or the nerve cells. Nerve cells are having a constant membrane potential of -70 millivolts. Okay.
अनदर पॉइंट, अनदर एक टर्म आती है दैट इज कॉल्ड एज, मैं यहाँ ये तो मिटा लेता हूँ, अनदर टर्म इज threshold potential. Threshold. Now another term is the threshold potential. Threshold potential. Now what is threshold potential? Threshold potential is simply ये वो वाला वैल्यू होता है. फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव सीन अ ग्राफ लाइक दिस, मैं ऐसे अभी थोड़ा सा ग्राफ बना रहा हूँ. फॉर एग्जाम्पल दिस इज एवरेज वैल्यू, हम इसको सेंटर वैल्यू लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल जो मैं कह रहा था अभी, जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है, मेम्ब्रेन पोटेंशियल, तो जो रेस्टिंग पोटेंशियल होता है दैट मींस अ कांस्टेंट मेम्ब्रेन पोटेंशियल. तो कांस्टेंट मेम्ब्रेन पोटेंशियल कब चेंज होगा? जब फॉर एग्जांपल ये कांस्टेंट मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होता है? सिंपली जब आयन्स के दरमियान एक इक्विलिब्रियम क्रिएट हो जाता है तो दैट बिकम्स द कांस्टेंट मेम्ब्रेन पोटेंशियल हो जाता है, उसको हम रेस्टिंग पोटेंशियल कहते हैं. लेकिन जो ही अब आयन्स की मूवमेंट हो जाएगी इनसाइड और आउटसाइड, अगर इनकी डिफरेंस फिर से क्रिएट हो गई तो दैट रिजल्ट्स इन द मूवमेंट ऑफ द आयन्स इनसाइड और आउटसाइड. तो उससे क्या हो जाएगा? उससे ये जो रेस्टिंग पोटेंशियल है ये चेंज हो जाएगा. और ये रेस्टिंग पोटेंशियल जब चेंज होता है तो फॉर एग्जांपल एक वैल्यू होता है कि रेस्टिंग पोटेंशियल, फॉर एग्जांपल एक लिमिट होती है. फॉर एग्जांपल दिस इज ये 0 to 10 है, 0 to 10 है. मैं कहता हूं कि एक एक्शन पोटेंशियल देखने को तब मिलेगा जब, अगर यहाँ पर देखो ये रेस्टिंग पोटेंशियल है, ये रेस्टिंग पोटेंशियल एक्शन पोटेंशियल में कब चेंज हो जाएगा, कब हमें चेंज देखने को मिलेगी. दैट मीन्स एक्शन पोटेंशियल सिंपली मीन्स चेंज जो है, चेंज मेम्ब्रेन पोटेंशियल में अगर चेंज आ गई दैट गिव्स राइज टू द एक्शन पोटेंशियल. लेकिन ये चेंज हमें कब विजिबल होगी? ये चेंज मेम्ब्रेन पोटेंशियल, अगर मूवमेंट ऑफ आयन्स हो रही है, मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज हो रहा है, लेकिन ये चेंज विजिबल कब हो जाएगी? ये चेंज विजिबल हो जाएगी जब जब ये मूवमेंट ऑफ आयन्स, जब ये मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहाँ तक पहुंच जाएगा? जब ये मेम्ब्रेन पोटेंशियल में जो अंदर ये डिफरेंसेस है ये पहुंच जाएंगी थ्रेशोल्ड पोटेंशियल तक, किसी अपर लिमिट वैल्यू तक. जो वैल्यू होता है उसके बाद हमें एक्शन पोटेंशियल देखने को मिलेगी, उसके बाद हमें चेंज देखने को मिलेगी. दैट मीन्स दिस थ्रेशोल्ड पोटेंशियल ये वो वाला पोटेंशियल होता है जहां से हम, जिसके बाद अगर उसमें चेंजेस कंटिन्यू रही मेम्ब्रेन पोटेंशियल में, इस सेल में आयन की मूवमेंट कंटिन्यू रही तो मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज होता गया. लेकिन ये मेम्ब्रेन पोटेंशियल की चेंज हमें कब नजर आएगी? जब ये चेंज किसको क्रॉस करेगी? थ्रेशोल्ड पोटेंशियल को क्रॉस करेगी. अगर ये थ्रेशोल्ड पोटेंशियल को, ये चेंज मूवमेंट ऑफ आयन्स जो है ये थ्रेशोल्ड पोटेंशियल को क्रॉस नहीं कर रही है, we will never see the action potential. हमें visible change action potential नजर नहीं आएगा. लेकिन जब ही ये मेम्ब्रेन पोटेंशियल इतना चेंज हो जाएगा, कहाँ तक पहुंच जाएगा? थ्रेशोल्ड पोटेंशियल तक, एक अपर लिमिट तक. तो उस अपर लिमिट के बाद ही हमें चेंज देखने को मिलेगी, दैट इज कॉल्ड एज द एक्शन पोटेंशियल. तो ये है एक्शन पोटेंशियल. ये तो थ्रेशोल्ड पोटेंशियल हो गया. नाउ आफ्टर दीज टर्म्स वी विल मूव टुवर्ड्स द पेस मेकिंग. अब जो पेस मेकिंग है, तो ऐसी नोड क्या करता है? पेस मेकिंग करता है. ये इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट करता है, ये इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट करता है. तो अब कैसे करता है? वी विल जस्ट लुक ऑन दिस. तो ये जो पेस मेकिंग है, ऐसे नोड जो पेस मेकिंग करता है, ये जो सिग्नल जनरेट करता है इलेक्ट्रिक सिग्नल, वो बेसिकली डिवाइड हुए इनटू फेजेस में डिवाइड हुई है. इसमें कितने फेज आते हैं? इट इज फेज 0, फेज 1 एंड फेज 2. 3 फेजेस में आते हैं, 3 फेजेस आते हैं. तो जो एक्शन पोटेंशियल, द एक्शन पोटेंशियल जनरेटेड बाय द SA node, दिस एक्शन पोटेंशियल which is generated by the SA node gets completed in 3 phases. 3 phases में जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है SA node, वो 3 phases में कंप्लीट होता है. वरना अगर कार्डिक पोटेंशियल, टोटली हार्ट का जो कार्डिक पोटेंशियल है, वो 5 फेजेस में कंप्लीट होता है. लेकिन ऐसे नोड का जो पेस मेकिंग है, दैट मीन्स एक्शन पोटेंशियल क्रिएट करना, ये कंप्लीट होता है 3 फेजेस में. तो इन 3 फेजेस को हम यहाँ से पढ़ेंगे. फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट फेज जो है
फेज जीरो। अब फेज जीरो में क्या होता है? फेज जीरो जो है, फेज जीरो, ये वाला फेज, ये फेज जीरो को हम पेस मेकर पोटेंशियल फेज भी बोलते हैं। इसमें पेस मेकर पोटेंशियल एक टर्म आपको देखने को मिलेगी। व्हाट पेस मेकर पोटेंशियल इज? पेस मेकर पोटेंशियल, पेस मेकर पोटेंशियल, पेस मेकर पोटेंशियल फेज। अब ये पेस मेकर पोटेंशियल फेज या फेज जीरो क्या है? तो इफ आई एम हियर ड्राइंग ए ग्राफ, for example this is minus 60 millivolts, this is the minus 40 millivolts. Minus 40 millivolts is the threshold potential. ये threshold potential है, this is threshold potential। तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा, ऐसे, this is threshold potential। यहाँ से मैं इसको लिखूंगा threshold potential। ये threshold potential है which is already clear to you। now होता क्या है, फेज जीरो जो है स्टार्ट होता है ये रिपोलराइजेशन से, रिपोलराइजेशन आफ्टर अर्ली रिपोलराइजेशन। जब रिपोलराइजेशन होती है उसके बाद पेसमेकर पोटेंशियल फेज और फेज जीरो आ जाता है। तो ऐसे होता है। ऐसे आ जाता है। तो देखो क्या होता है, पहले फेज जीरो को हम पेसमेकर पोटेंशियल भी बोलते हैं। तो पेसमेकर पोटेंशियल आप सिंपली देखिए, पेसमेकर पोटेंशियल क्या, यहाँ जो है इस ग्राफ में ये जो है दिस इज कॉल्ड पेसमेकर पोटेंशियल, पेसमेकर पोटेंशियल। अब ये पेसमेकर पोटेंशियल है क्या चीज? पेसमेकर पोटेंशियल नाउ देखो क्या होता है पेसमेकर पोटेंशियल में, जो ही आफ्टर अर्ली, जब पहले रिपोलराइजेशन होती है, पहले रिपोलराइजेशन होती है। नाउ यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट, रिपोलराइजेशन पहले क्या होती है? रिपोलराइजेशन होती है। फेज जीरो से पहले रिपोलराइजेशन होती है। तो व्हाट रिपोलराइजेशन मीन्स? रिपोलराइजेशन मीन्स इंक्रीज इन नेगेटिव चार्ज, इंक्रीज इन नेगेटिव चार्ज। अगर चार्ज नेगेटिव ज्यादा हो रहा है दैट इज कॉल्ड एज रिपोलराइजेशन। इंक्रीज इन नेगेटिव चार्ज, इंक्रीज इन द नेगेटिव चार्ज दैट इज कॉल्ड एज रिपोलराइजेशन। एक और टर्म में यहां पर आपको बोलूंगा दैट इज पोलराइजेशन। पोलराइजेशन, पोलराइजेशन। तो ऑल जो बहुत सारी एवरेज मैं सेल्स की बात करूंगा तो एवरेज सेल्स पोलराइज्ड होती है। पोलराइज्ड मींस दे आर हैविंग ए पोलराइज्ड स्टेट, दे आर हैविंग ए सिंपली अ नेगेटिव चार्ज। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सेल्स, जो सेल्स हैं उन पर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मोस्टली नेगेटिव चार्ज वो होती है। दैट इज कॉल्ड एज अ पोलराइज्ड स्टेट। एक इक्विलिब्रियम स्टेट में जो नेगेटिव चार्ज होता है उस सेल मेम्ब्रेन पर, सिंपली हम उसको बोलते हैं इट इज एन द मेम्ब्रेन इज इन अ पोलराइज्ड स्टेट। सेल जो है पोलराइज्ड स्टेट में है, दैट इज इट इज हैविंग ए चार्ज, पोलराइज्ड स्टेट। तो वो पोलराइज्ड स्टेट बेसिकली नेगेटिव चार्ज उन पर होता है। तो अगर ये नेगेटिव चार्ज एट द रेस्टिंग पोटेंशियल, अगर इस सेल में नेगेटिव चार्ज था जिस पर ये इक्विलिब्रियम में बैठी थी, नेगेटिव चार्ज था इसमें, फॉर एग्जाम्पल -70 मिलीवोल्ट्स रेस्टिंग पोटेंशियल। ओके, एक रेस्ट पर इसमें -70 मिलीवोल्ट्स का चार्ज था, जनरली मैं एग्जांपल बोल रहा हूँ। नाउ अगर क्या हो रहा है, अगर ये चार्ज, अगर ये -70 मिलीवोल्ट्स, ये चार्ज बढ़कर कितना होता है, फॉर एग्जांपल -50 मतलब कम, नेगेटिविटी कम हो रही है। जितना जितना अगर मैं 80 -80 चलूंगा, जितना जितना मैं आगे चलूंगा दैट मीन्स नेगेटिविटी ज्यादा बढ़ रही है। अगर मैं कम कम हो जाऊंगा दैट मीन्स नेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है, नेगेटिविटी इज डिक्रीजिंग। दैट मीन्स नेगेटिविटी डिक्रीज होना मीन्स पॉजिटिवनेस इंक्रीजेस, यहाँ पर पॉजिटिवनेस इंक्रीज हो रही है।
तो जब अगर नेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है दैट मीन्स दैट विल लेट टू द इंक्रीज इन द पॉजिटिवनेस, है ना। वो सिंपली जो नेगेटिव डिक्रीज होता है, अगर नेगेटिव वैल्यू डिक्रीज मेरा हो रहा है, अगर मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है -70 मिली वोल्ट से लेकर ये -50 तक पहुंच रहा है या ये 0 तक पहुंच रहा है, आई कॉल दिस, जब ये इंक्रीज इन द पॉजिटिव चार्ज हो रहा है आई कॉल दिस एज डिपोलराइजेशन। इसको मैं डिपोलराइजेशन बोल रहा हूँ। तो डिपोलराइजेशन आप सिंपली याद रखोगे, डिपोलराइजेशन सिंपली मीन्स इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज, इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज। जब पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है दैट इज कॉल्ड एज द डिपोलराइजेशन, while as repolarization means increase in the negative charge, more negative charge gets increased, that is repolarization। and अगर बहुत सारा ज़्यादा अगर नेगेटिव चार्ज और ज़्यादा ये इंक्रीज हो गया, अगर नेगेटिव चार्ज 70 से -80 हो गया दैट मीन्स हम उसको हाइपर पोलराइजेशन भी बोलते हैं। हाइपर पोलराइजेशन, सबसे ज़्यादा नेगेटिव हो जाना, ज़्यादा नेगेटिव हो जाना, दैट इज हाइपर पोलराइजेशन। ठीक है, तो ये जो 3 टर्म्स आ गई यहाँ पर, अब हम इनको छोड़ के यहाँ पर चलते हैं। तो क्या हो जाता है ड्यूरिंग अर्ली फेज, पहले रिपोलराइजेशन हो जाती है, दैट मीन्स यहाँ पर मैं दिखाऊंगा, पहले यहाँ पर मैं दिखाऊंगा, दिस इज सिंपली रिपोलराइजेशन। ये इस ग्राफ में रिपोलराइजेशन हो रही है, यहाँ पर हमें शो हो रही है रिपोलराइजेशन। दैट मीन्स यहाँ पर अगर रिपोलराइजेशन हो रही है, देखो पहले ग्राफ जो है, पहले ये क्या हो रहा है, ये -60 से कहाँ जा रहा है, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल तक, ये -60 से -40 चल रहा है, दैट मीन्स नेगेटिवनेस डिक्रीज हो रही है। तो उसके बाद फॉर एग्जांपल यहाँ ये पीक वैल्यू है, ये 0 वैल्यू है, तो ये है 30 फॉर एग्जांपल, ये है 20, और ये 0 है, ये 0 है यहाँ पर -30, या यहाँ पर -30 यहाँ है, फिर उसके बाद -20 यहाँ है, उसके बाद -10 यहाँ है, उसके बाद 0 है। तो अगर ये नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रही है, दिस इज कॉल्ड एज डिपोलराइजेशन। तो ये वाला फेज यहाँ पर जो है, दिस इज डिपोलराइजेशन। ये जो एक्शन पोटेंशियल, दिस इज एक्शन पोटेंशियल, ये एक्शन पोटेंशियल है। लेकिन पहले क्या हो रहा है, पहले डिपोलराइजेशन हो रहा है, उसके बाद फिर से ये नेगेटिव में आ रही है, फिर से ये ग्राफ डिक्रीज हो रहा है, तो ये कहाँ आ रहा है, नेगेटिव वैल्यू पर, दैट इज कॉल्ड एज रिपोलराइजेशन। ये तो रिपोलराइजेशन है। लेकिन जो ही ये डिक्रीज हो रही है, जो ही ये डिक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स आफ्टर द रिपोलराइजेशन एक फेज आता है, दैट इज कॉल्ड फेज 0 और पेसमेकर पोटेंशियल फेज। व्हाट पेसमेकर पोटेंशियल फेज इज, पेसमेकर पोटेंशियल फेज सिंपली मीन्स यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल अभी होगा, दैट मीन्स जब रिपोलराइजेशन होती है तो मेम्ब्रेन पर चार्ज क्या होगा, रिपोलराइजेशन मीन्स इंक्रीज इन द नेगेटिव चार्ज, तो मेम्ब्रेन पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा। तो इस रिपोलराइजेशन के बाद जब मेम्ब्रेन पर नेगेटिव चार्ज बहुत होता है, इस दौरान क्या हो जाता है, इस दौरान अब मेम्ब्रेन पोटेंशियल इंक्रीज होने लगता है जब ड्यूरिंग द रिपोलराइजेशन। तो रिपोलराइजेशन के दौरान क्या हुआ, मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज वेरी नेगेटिव। मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या है, मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज वेरी नेगेटिव। अब ये कैसे होता है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। मेम्ब्रेन पोटेंशियल रिपोलराइजेशन में क्या होता है, वेरी नेगेटिव होता है। लेकिन उसके बाद ही जो ही ये रिपोलराइजेशन का फेज खत्म ही होता है, उसके बाद फेज 0 स्टार्ट होता है। तो फेज 0 के दौरान क्या हो जाता है, फेज 0 के दौरान अब ये मेम्ब्रेन पोटेंशियल धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ये ऊपर की तरफ, ये पॉजिटिवनेस की तरफ जा रहा है, ये पॉजिटिवनेस की तरफ जा रहा है। तो ये जो इंक्रीज हो रहा है, स्लाइटली इंक्रीज हो रहा है मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अभी तक मेम्ब्रेन पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा था, दैट मीन्स मोर नेगेटिव बन रहा था रिपोलराइजेशन में। लेकिन जो ही फेज 0 आ गया, दैट मीन्स पेसमेकर पोटेंशियल। तो पेसमेकर पोटेंशियल में क्या हुआ, या फेज 0 में क्या हुआ, जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो स्लाइटली इंक्रीज हो रहा है। तो जब ये स्लाइटली इंक्रीज हो रहा है, तो इस स्लाइटली इंक्रीज टुवर्ड्स द पॉजिटिवनेस, जो पॉजिटिवनेस जा रही है, ये मेम्ब्रेन पोटेंशियल टुवर्ड्स पॉजिटिवनेस जा रहा है, इसको हम पेसमेकर पोटेंशियल कहते हैं। दिस इज सिंपली कॉल्ड एज द पेसमेकर पोटेंशियल। तो पेसमेकर पोटेंशियल और कुछ नहीं है, पेसमेकर पोटेंशियल सिंपली है कि जब एक आफ्टर रिपोलराइजेशन
ये मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है, अगर मैं डिफाइन यहाँ पर पेसमेकर पोटेंशियल को करूंगा, तो ड्यूरिंग फेज 0 मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होता है? मेम्ब्रेन पोटेंशियल begins to increase slightly. तो मेम्ब्रेन पोटेंशियल begins to increase slightly. तो जब मेम्ब्रेन पोटेंशियल इंक्रीज होने लगता है स्लाइटली, लेकिन ये स्लाइटली जो इंक्रीज मेम्ब्रेन पोटेंशियल हो गया, दैट मीन्स इंक्रीज मेम्ब्रेन पोटेंशियल मीन्स पॉजिटिवनेस ज्यादा आ गई मेम्ब्रेन में। लेकिन ये पॉजिटिवनेस कब आएगी ज्यादा मेम्ब्रेन में? ये पॉजिटिवनेस हमें, आप देखो यहाँ पर दो आयन्स हैं, एक तो सोडियम है, एक तो पोटेशियम है, और कैल्शियम आयन। ये कैल्शियम आयन, पोटेशियम आयन, ये पॉजिटिव आयन, कैल्शियम और ये सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम, ये पॉजिटिव आयन है। अब जितना सेल के अंदर ये जाएंगे, जितना सेल के अंदर ये ज्यादा हो जाएंगे, दैट मीन्स उतनी सेल में पॉजिटिवनेस बढ़ जाएगी। अगर तो ये फॉर एग्जाम्पल देखो क्या हो जाता है, ये मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो इंक्रीज हो रहा है स्लाइटली, वो क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर इनफ्लक्स होता है, इस आउटसाइड से इनसाइड सोडियम अंदर आ जाता है, सेल के अंदर सोडियम अंदर आ जाता है, और जो सेल के बाहर जो कौन निकलता था, पोटेशियम बाहर की तरफ निकलता था। जो पोटेशियम बाहर की तरफ निकलता था, वो चैनल्स बंद होती थी ड्यूरिंग द सोडियम पोटेशियम पंप। तो बेसिकली सोडियम पोटेशियम पंप है ना, तो इसकी उसी से एक्शन पोटेंशियल डेवलप हो जाता है। लेकिन अब इसमें थोड़े से फेजेस हैं। तो यहाँ पर पोटेंशियल जो है, पोटेशियम चैनल्स जो क्लोज, पोटेशियम चैनल्स क्लोज होती है ड्यूरिंग फेज 0, पोटेशियम चैनल्स क्लोज हो जाती है और सोडियम चैनल्स ओपन हो जाती है। सोडियम चैनल्स, दैट मीन्स सोडियम चैनल्स, सोडियम इनफ्लक्स हो जाता है, और इसके साथ साथ पोटेशियम भी पोटेशियम भी इनफ्लक्स हो जाता है। अब कैसे हो जाता है? देखो, एक तो पोटेशियम की चैनल्स क्लोज हो गई, पोटेशियम अभी तक बाहर निकल रहा था ड्यूरिंग द पेसमेकर पोटेंशियल, ये पोटेशियम चैनल्स ड्यूरिंग द फेज 0 और ड्यूरिंग द पेसमेकर पोटेंशियल, ये पोटेशियम चैनल्स क्लोज हो गई। अब जो ये क्लोज हो रही है पोटेशियम चैनल्स, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? अब देखो, अब इस दौरान क्या होता है, यहाँ पर एक और चैनल ओपन हो जाती है, दैट इज HCN चैनल्स ओपन हो जाती है। HCN चैनल्स है जो HCN चैनल्स है, हाइपर पोलराइज्ड, ये पोलराइज्ड चैनल्स होती है। कैल्शियम पोलराइज्ड चैनल्स होती है, साइक्लिक न्यूक्लियोटाइड ये चैनल्स होती है, हाइपर पोलराइज्ड साइक्लिक न्यूक्लियोटाइड चैनल्स होती है। पर इसको मैं अगर ऐसे बोलूं, हाइपर पोलराइज्ड साइक्लिक न्यूक्लियोटाइड चैनल्स, तो ये चैनल्स ओपन हो जाती है। ये चैनल्स जब ओपन हो जाती है, लेकिन ये कब ओपन हो जाती है? देखो कब होगा, जो ही रिपोलराइजेशन हो जाती है, रिपोलराइजेशन के बाद ही, जब मेम्ब्रेन में पोटेंशियल नेगेटिव होता है, जब मेम्ब्रेन पोटेंशियल बहुत ज्यादा नेगेटिव होता है, उस नेगेटिव पोटेंशियल से HCN चैनल्स क्या हो जाती है, उस नेगेटिव पोटेंशियल HCN चैनल्स एक्टिवेट हो जाती है, और उसी के साथ साथ के पोटेशियम चैनल्स क्लोज होती है। HCN चैनल्स तो ओपन हो जाती है, लेकिन पोटेशियम चैनल्स क्या होती है? पोटेशियम चैनल्स क्लोज होती है। अब HCN चैनल्स जो है, जिनको मैंने बोला हाइपर पोलराइज्ड साइक्लिक न्यूक्लियोटाइडिक चैनल्स जो होती हैं, ये HCN चैनल्स ये किस वाले पोटेंशियल पर एक्टिवेट हो गई? नेगेटिव पोटेंशियल पर। जब नेगेटिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल था, तो नेगेटिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल पर कोई चैनल ओपन हो रही है। कौन सी चैनल? HCN चैनल। ये HCN चैनल दो किस्म की होती है, एक तो सोडियम होती है और दूसरी पोटेशियम चैनल होती है, सोडियम और पोटेशियम। तो दैट मीन्स इससे सोडियम और पोटेशियम अंदर आएगा। HCN चैनल्स जो है, HCN चैनल्स से क्या हो जाएगा? सोडियम और पोटेशियम अंदर की तरफ आएगा। प्लस इसी ड्यूरिंग द रिपोलराइजेशन है और ड्यूरिंग फेज फर्स्ट, तो इसमें के पोटेशियम चैनल्स क्लोज हो गई, लेकिन HCN चैनल्स नेगेटिविटी से पहले ही ओपन हो गई थी, और उससे पोटेशियम और जो सोडियम है वो अंदर आने लगा। ठीक, तो इससे पॉजिटिवनेस ज्यादा बढ़ गई ना। तो लेकिन जो ये HCN चैनल्स एक्टिवेट होगी एट द नेगेटिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल,
ये एक अनयूजुअल फिनोमेना है, दिस इज अनयूजुअल फिनोमेना। अनयूजुअल फिनोमेना है, ये अक्सर ऐसे नहीं होता है, अक्सर पॉजिटिव चार्ज पर कुछ चैनल्स ओपन हो जाती है, लेकिन अगर नेगेटिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल पर चैनल्स ओपन हो गई, फॉर एग्जाम्पल एसियन चैनल क्या है, वो नेगेटिव पोटेंशियल मेम्ब्रेन पोटेंशियल पर ओपन हो रही है, तो इसको हम एक और नाम से भी कहते हैं, इट सिंपली इज कॉल्ड एज फनी करंट। इसको हम फनी करंट भी कहते हैं, फनी करंट। तो जो फनी करंट है, फनी व्हाट फनी करंट सिंपली मींस, क्वेश्चन इस पर भी आता है, व्हाट फनी करंट इज, फनी करंट क्या होती है। तो फनी करंट सिंपली मींस जब एचसीएन चैनल्स जो है, हाइपर पोलराइज्ड साइक्लिक न्यूक्लियोटाइड चैनल्स, ये ओपन हो जाती है एट अनयूजुअल नेगेटिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल। नेगेटिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल पर एचसीएन चैनल्स ओपन होना, दिस इज टोटली रेयर थिंग ये होती है। अगर कोई चैनल मेम्ब्रेन नेगेटिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल पर ओपन हुई, दिस इज सिंपली अ रेयर थिंग। तो ये अनयूजुअल फिनोमेना जो हो रहा है, नेगेटिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल पर कोई चैनल्स, एशियन चैनल्स ओपन हो रही है, दिस इज सिंपली कॉल्ड, एशियन चैनल्स कौन है, सोडियम और पोटेशियम, ठीक है। तो दिस इज सिंपली कॉल्ड एज द फनी करंट, इसीलिए हम इसको फनी करंट बोलते हैं। इट इज अनयूजुअल, ये होता नहीं है अक्सर, बट ये हो गया, हाँ ये हो जाता है हार्ट के अंदर, तो दिस इज सिंपली कॉल्ड एज फनी करंट। तो अभी आप इस वाले लेक्चर में, आई थिंक इट बिकम्स टू लेंथी नाउ हियर, हम इसको यहीं पर स्टॉप करते हैं, क्योंकि अभी इसमें टाइम लगेगा। अभी द स्पेस मेकिंग विल गेट कवर्ड इन सेकेंड lecture, I think. Okay, now